Hello friends, welcome to the Concept Education channel on YouTube. This is Govind sir explaining you the engineering graphics, the most important chapter, projection of lines. So friends, we have already studied some basics of theory of projection or the concept of projection, in which we have studied what is meant by HP, VP, first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant, and then we have learned the projection of points. In projection of points, what we have studied? We have studied the point in all four quadrants. It may be in first, second, third or fourth quadrant, or sometimes the point is on HP or on VP or on both HP and VP. Up till now we have studied this much. Now the next chapter is very important, very crucial. It requires high imagination, because when the line enters in different quadrants, the problem becomes complicated, right? So please concentrate on the first problem of this chapter. Okay, so before going to start, I will explain some positions of line. The line may be, the first position will be, the line may be parallel to both HP and VP. Second, line parallel to one and inclined to other. And next, line inclined to both HP and VP, that is called oblique lines, on which type we are going to solve the problem in today's lecture. Then once again, line inclined to both HP and VP, but this is special case. What is that special case? Theta plus phi is equal to 90 degree. What is theta, what is phi, I will explain in detail. Okay, so these are some different types. So first, what is meant by different parameters? So there are number of parameters: true length, top view length, front view length, theta, phi, alpha, beta, ht, vt, then distance between end projectors, a dash, b dash, etc. So one by one, right? First is true length. So what is meant by true length? When the line is parallel to HP, its true length will be in HP. When the line is parallel to VP, its true length will be in VP. Means if the line is parallel, it shows true length in that particular plane. ट्रू लेंथ का कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर आपको ट्रू लेंथ चाहिए तो लाइन पैरेलल होनी चाहिए, या ट्रू लेंथ आपको दिखाई दे रही है तो लाइन मस्ट बी पैरेलल. अगर आपको टॉप व्यू में ट्रू लेंथ दिख रही है तो एचपी में ट्रू लेंथ दिख रही है. एचपी में ट्रू लेंथ दिख रही है, इसका मतलब ऑब्वियसली लाइन एचपी को पैरेलल है. अगर आपको ट्रू लेंथ किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में फ्रंट व्यू में दिखाई देती है, सो दैट लाइन इज पैरेलल टू वीपी. सो कंक्लूजन, व्हेन द लाइन इज पैरेलल, it shows true length. Second, top view length. What is meant by top view length? It is the reduced length in top view. इसको हम प्लान लेंथ भी कहते हैं. कभी टॉप व्यू लेंथ कहेंगे, कभी प्लान लेंथ कहेंगे. I repeat, top view length means it is the reduced length in top view. अगर आपको टॉप व्यू में ट्रू लेंथ दिख रही है तो उसको हम टॉप व्यू लेंथ नहीं कहेंगे, उसको हम ट्रू लेंथ ही कहेंगे डायरेक्ट. टॉप व्यू लेंथ का मतलब रेडियस लेंथ ही होती है, एपरेंट लेंथ होती है, जिसको हम कभी एपरेंट लेंथ कहेंगे, कभी टॉप व्यू लेंथ कहेंगे, कभी प्लान लेंथ कहेंगे. ओके, नेक्स्ट इज फ्रंट व्यू लेंथ, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एलिवेशन लेंथ. अगेन दिस इज एपरेंट लेंथ. एपरेंट का मतलब विच इज नॉट रियल लेंथ, विच इज नॉट ट्रू लेंथ. ओके, फ्रंट व्यू लेंथ मीन्स इट इज द रेडियस लेंथ इन फ्रंट व्यू. ओके, और एलिवेशन लेंथ. सो दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ लेंथ्स: true length, top view length and front view length. Next set is angles. 4 angles होते हैं: theta, phi, alpha, beta. What is meant by theta? Theta means this is the true inclination made by the true length of the line with HP. I repeat, theta is the true inclination made by the true length of the line with HP.
वर्डिंग क्या होती है क्वेश्चन में, वो कहेंगे लाइन इज मेकिंग 40 डिग्रीज टू HP, so this is theta. Now next is phi. Phi means it is a true inclination made by the true length of the line or original line with VP. Wording कैसी होगी, the line is making 30 degrees to VP, so this is phi. Next is alpha. Alpha is the apparent angle which is not real angle. So जैसी लेंथ वैसा एंगल होता है, लेंथ ट्रू है तो एंगल भी ट्रू होते हैं. सो थीटा एंड फाई आर द ट्रू इंक्लिनेशंस मेड बाय द ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन, एंड अल्फा बीटा आर द apparent inclinations obviously made by the apparent lengths of the line, apparent length of the line. So what is alpha? It is the angle made by apparent length in front view, or simply front view length. Alpha is the angle made by front view length and beta is the angle made by top view length. Okay, so these are four angles. Then two traces are there, TRACES traces, HT and VT, horizontal trace, vertical trace. उसको हम डिटेल में बाद में देखेंगे सेपरेट लेक्चर में. Then distance between end projector, ये हम सॉल्यूशन होने के बाद आखिरी स्टेप में आपको बता देंगे. राइट, सो दीज आर नंबर ऑफ पैरामीटर्स. उसमें से आपको कोई भी 5 पैरामीटर्स होने चाहिए, तभी प्रॉब्लम सॉल्व होता है लाइन इंक्लाइन टू बोथ का. सो फर्स्ट टाइप इज, तो हम आज देखेंगे टाइप इंक्लाइन टू बोथ, ऑब्लिक लाइंस भी कहते हैं उसको. ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन लिखो. फर्स्ट क्वेश्चन, लाइन ए बी 90 mm long has its end A 10 mm above HP and 20 mm in front of VP. Full stop. The line is making, वर्डिंग की तरफ ध्यान दो, the line is making 45 degrees to HP. तो ये एंगल कौन सा हो गया, थीटा, करेक्ट, and 30 degrees to VP. The line is making 45 degrees to HP and 30 degrees to VP. So what is this? Theta and phi. Draw the projections. Draw the projections simply. Now we'll start the actual solution of this problem. Okay, let's start, friends. Now we'll start with the data, what is given in the question. Always make it habit to write the data on the left top corner, and the answer should be on the right bottom corner. This is input, this is output, and this is CPU, central processing unit. Okay, so first, line AB is 90 mm long, means the true length is 90, and if it is given line measures 90 mm in its top view, then it will be top view length. Line measures 90 mm in its front view, then it will be front view length. Line measures 90 only, तो क्या होगा, true length होगी. और line AB 90 mm long, straight way true length. Then it has the end point A 10 mm above HP and 20 mm in front of VP. How to read this? Above HP and in front of VP. Then the line is making 40 degrees to HP. So 45 degrees to HP. Okay. So what is this angle? Theta, phi, alpha, beta. If it is given line is making, not front view is making, not top view is making. What is given? Line is making. So it must be theta or phi. If it is with HP, then it will be theta. Then what about phi? What is given in the question? A line AB is making 30 degrees to VP. 30 degrees to VP. And if the line is making some angle with VP, then it will be phi. If it is with HP, this is theta. With VP, this is phi. ये लाइन्स के एंगल्स है, ट्रू इंक्लिनेशंस है, तो ये ट्रू लेंथ के एंगल्स होते हैं. So these are the angles made by the true length of the line. ये जो true length है ना, उसी के angles है. अगर ऐसा होता क्वेश्चन में, the front view of the line is making 45 degrees, तो ये अल्फा होता. top view of the line is making बोला होता, तो ये बीटा होता.
ये लाइंस के एंगल्स है, मीन्स टू लेंथ के एंगल्स है। अल्फा और बीटा किसके एंगल्स होते थे? फ्रंट व्यू लेंथ और टॉप व्यू लेंथ के एंगल्स होते थे, जो हम बाद में के क्वेश्चंस में अच्छी तरह से समझ लेंगे। नाउ ड्रॉ द प्रोजेक्शंस बोला। अब ड्रॉ द प्रोजेक्शंस का मतलब क्या होता है? जो भी डेटा दिया है उसको हमें ड्राइंग में कन्वर्ट करना है, उसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू आपको ड्रॉ करना है। वो जो लाइन है, HP को इंक्लाइंड है, VP को इंक्लाइंड है, ऐसी टेढ़ी मेढ़ी लाइन है, उसको सामने से देखो, ऊपर से देखो, जैसा भी दिखाई देता है आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, और उसी को हम कहते हैं प्रोजेक्शंस। वेरी सिंपल कंसेप्ट। नाउ काउंट द पैरामीटर्स 1, 2, 3, 4 एंड 5। इनको भी हम पैरामीटर्स कंसिडर करते हैं, ए और ए डैश को, ठीक है। तो इंक्लूडिंग ए डैश 5 पैरामीटर्स होने चाहिए जब लाइन इंक्लाइन टू बोथ होती है तब। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। So always start with the XY line. Okay, this is XY. थोड़ी सी डार्क बनाइए इस तरह से। This is XY line. Then draw a projector. First projector, उसको कहते हैं end projector, जो कि exactly 90 डिग्री पे होगा XY के साथ। Faint line, very faint. Okay, just visible to you. Okay, then mark the end point. So a dash, always start with the end point. बाकी क्या डेटा दिया है उसकी तरफ ध्यान मत दो, सिर्फ end point। और किसी भी क्वाड्रेंट में हो, इससे क्वाड्रेंट तो पता चल ही जाता है। अबो HP एंड इन फ्रंट ऑफ VP, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो उसका लोकेट करेंगे a कहाँ आता है और a डैश कहाँ आता है। देखो अभी 10 mm मुझे मार्क करना है, एक तो ऊपर नहीं तो नीचे। क्या कहा है? अबो, तो अबो लेना है, ये अबो। अब HP से ऊपर है तो दिखेगा कहाँ? VP में। VP में क्या होता है? फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू इज, बोलो बोलो, A डैश। वेरी गुड, दिस इज A डैश। अगर बिलो HP होता तो बिलो जाता था, तब भी डैश ही होता। हमने प्रीवियस लेक्चर में ही देखा है, HP से डिस्टेंस अबो हो, बिलो हो, ऑन HP हो, हमेशा डैश। अब ये 20 mm मार्क करना है। 20 mm एक तो ऊपर नहीं तो नीचे आएगा। इन फ्रंट ऑफ VP, हाउ टू रीड दिस? इन फ्रंट ऑफ VP। तो ये एरो किधर है? राइट। टेक्निक बताया था, राइट डाउन, इट गोज डाउन। दिस इज 20 एंड देन अब ये A आएगा कि A डैश आएगा? कहां से डिस्टेंस है? VP से। दिखेगा कहां? HP में। HP में क्या होता है? टॉप व्यू। टॉप व्यू इज A, दैट्स इट। ये 10 और 20 पे A डैश और A मार्क। अभी A डैश का मतलब होता है फ्रंट व्यू। आपको जहां डैश दिखा हो समझना फ्रंट व्यू है। और फ्रंट व्यू किस प्लेन में होता है? VP में होता है। तो इसका जो बैकग्राउंड प्लेन है वो क्या है? VP है। अब ये A क्या है? टॉप व्यू। टॉप व्यू कहाँ होता है? HP में। तो इसका बैकग्राउंड प्लेन क्या होगा? HP होगा, याद रखिए। अब ये VP ऊपर है, HP नीचे है, राइट। और इसको कहते हैं हम XY लाइन। ओके, ऊपर क्या है? VP। दिमाग में रख सकते हो आप VP, या फिर आप ऐसा भी सोच सकते हो, this is vertical plane, this is horizontal plane, समझने के लिए। this is HP। ओके, ये था फर्स्ट क्वाड्रेंट अपना, जो हमने आपको एकदम इनिशियल लेक्चर में बताया था। इधर फ्रंट व्यू, इधर टॉप व्यू, ये XY लाइन। इसको हमने रोटेट करने के बाद ये HP नीचे गया था, टॉप व्यू नीचे गया था, ठीक है। यही होता है, सिर्फ आपको यहाँ पे क्या है, अभी पॉइंट के बजाय लाइन है। लाइन फ्रंट व्यू में कैसे दिखेगा और टॉप व्यू में कैसे दिखेगी, ये हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। लेकिन हर बार क्वाड्रेंट लेके ड्रॉ करके देखना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हम डायरेक्ट सॉल्विंग टेक्निक्स यूज करते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी। अब इसको हम मिटा देते हैं, कोई आवश्यकता नहीं है इसकी। सो हमने पहले पॉइंट्स मार्क कर दिए हैं। अभी हम स्टार्ट करेंगे एंगल्स। कोई भी एक एंगल लो दोनों में, तो ये 45 डिग्री लेते हैं। कंफ्यूजन क्या होता है अभी? 45 डिग्री A डैश से लेना है या A से लेना है? 45 डिग्री टू HP, ये मुझे बताना है यहाँ। अब याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इवन इफ द लाइन इज इंक्लाइन टू बोथ HP एंड VP, even if the line is inclined to both HP and VP, assume that the line is inclined to HP only. लिखता हूं पॉइंट, assume inclined to one and parallel to other, ये याद रखिए।
एज्यूम द लाइन इज इंक्लाइंड टू वन एंड पैरेलल टू अदर। अब लाइन किसको इंक्लाइंड है, एचपी को इंक्लाइंड है, तो वीपी को भी है इंक्लाइंड क्वेश्चन में, लेकिन हम एज्यूम नहीं करेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे अभी उसको। हमें सिर्फ एज्यूम करना है कि एचपी को ही इंक्लाइंड है, तो वीपी को कैसी पैरेलल एज्यूम करो। अब इतनी पोजीशन याद रखनी है। लाइन इंक्लाइंड, आंखें बंद करके देखो, इंक्लाइंड टू एचपी और पैरेलल टू वीपी, कैसी दिखेगी लाइन। कोई भी एक लाइन इमेजिन करो, एक छड़ी इमेजिन करो, एचपी को इंक्लाइंड है और वीपी को पैरेलल है, दीवार को पैरेलल है और ग्राउंड को इंक्लाइंड है। सामने से देखो, ऊपर से देखो, सामने से क्या दिखेगा, एक एंगल दिखेगा और एक्चुअल ट्रू लेंथ दिखेगी जो भी है, और ऊपर से क्या दिखेगा बोलो। यस, इमेजिन करो, ऊपर से आपको एक लाइन छोटी दिखेगी, कम दिखेगी, रेड्यूस हो जाएगी। और हमें अच्छी तरह से पता है जब लाइन इंक्लाइंड होती है तो क्या होती है, रेड्यूस हो जाती है। रेड्यूस तो होगी लेकिन वो दीवार के साथ यानी कि एक्स वाई के साथ क्या होगी, पैरेलल होगी। तो ये पोजीशन आपको बतानी है। लेट्स स्टार्ट। एंगल लो 45 डिग्री किसके साथ है, एचपी के साथ। दिखेगा कहाँ, वीपी में। वीपी में क्या होता है, फ्रंट व्यू। इन दोनों में फ्रंट व्यू कौन सा है, ए डैश। तो चलो हम ए डैश से एंगल लेते हैं, ठीक है। तो एंगल लेने के लिए आपको क्या चाहिए, एक लाइन चाहिए पहले, वहां से हम एंगल लेंगे, ठीक है। फेंट लाइन, यहाँ पे भी एक लाइन बना के रख देंगे, हमें एंगल तो लेना ही है, बहुत फेंट। ओके, अब 45 डिग्री। अब कंफ्यूजन होता है एंगल ऊपर लेना है कि नीचे लेना है। ऑलवेज स्टे अवे फ्रॉम एक्स वाई लाइन, एक्स वाई से दूर रहो। कब तक दूर रहेंगे, जब तक बी पॉइंट के क्वाड्रेंट के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया है तब तक। जब मेंशन करेंगे तब हम देखेंगे कहाँ जाना है। तो फिलहाल लेना एंगल ऊपर, अवे फ्रॉम एक्स वाई, मीडियम डार्क, ठीक है। अब ये एंगल क्या है, थीटा है, ट्रू है, रियल एंगल है, तो हमेशा उसके साथ क्या होती है, ट्रू लेंथ होती है। सो मार्क 90 mm हियर, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, ए बी लाइन है तो इधर ए आएगा, इधर बी आएगा, इधर डैश है तो इधर भी डैश आएगा। लेकिन ये एज्यूम्ड पोजीशन है, ये फाइनल नहीं है, इसलिए उसको देना है सफिक्स। जब फाइनल होगी तो कोई सफिक्स नहीं देंगे। अब ये होती है उसकी ट्रू लेंथ। अब ये फ्रंट व्यू हो गया। अब इसका टॉप व्यू कैसा दिखेगा, ऊपर से जब देखेंगे तो ये क्या होगी, रेड्यूस हो जाएगी, ठीक है। रेड्यूस होके पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि लाइन कैसी है, पैरेलल टू अदर। अदर मीन्स वीपी। फिलहाल वीपी को पैरेलल कहाँ दिखेगी, पैरेलल एचपी में दिखेगी। तो यहाँ पे हम पैरेलल बनाएंगे, और ये रिलेशन बहुत काम का रिलेशन है। एक व्यू में ट्रू लेंथ दिखती है तो दूसरा व्यू पैरेलल ही होता है प्रोजेक्शन के लिए। फेंट लाइन, हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, एक व्यू में अगर ट्रू लेंथ है तो दूसरे व्यू में कंपलसरी पैरेलल होती है, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, ऊपर जैसा है वैसा ही, सिर्फ इधर B1 आएगा, डैश नहीं आएगा, डैश फॉर फ्रंट व्यू। अब इसको कहते हैं टॉप व्यू लेंथ, राइट। ये होगा एक सेट। एज्यूम द लाइन इज इंक्लाइंड टू वन एंड पैरेलल टू अदर, उसी को रिपीट करना है लेकिन दूसरा एंगल लेके। एंगल 30 डिग्री किसके साथ है, वीपी के साथ। दिखेगा कहाँ, एचपी में। एचपी में क्या होता है, टॉप व्यू। टॉप व्यू कौन सा दोनों में, ए, तो ए से एंगल लेंगे अवे फ्रॉम एक्स वाई। ओके, तो इधर से एंगल लेते हैं 30 डिग्री, ठीक है। आपने मेजर करके लेना है प्रोट्रैक्टर से। आई एम ड्रॉइंग फ्री हैंड। दिस इज 5, कितना 30 डिग्री, इधर कितना था 45 डिग्री। सिर्फ एंगल लिखे तो अननोन लगेगा, इट इज नोन। अब ये देखो 5 है तो ये ट्रू आएगा, ट्रू लेंथ आएगी। हाउ मच इज द ट्रू लेंथ, अगेन 90। तो सेम ट्रू लेंथ कॉपी कर सकते हो आप और इधर पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर डायरेक्ट 90 मार्क करो स्केल से। तो ये क्या होगा, बी, इधर ए है तो बी आएगा, डैश नहीं आएगा। अब मुझे सफिक्स तो देना है, बिकॉज अगेन दिस इज एज्यूम्ड पोजीशन, तो सफिक्स देना था B1, ऑलरेडी है, अभी B2 देंगे नाम, राइट। अब ये फिर से ट्रू लेंथ आ गई। हमने अभी अभी रिलेशन देखा था, एक व्यू में अगर ट्रू लेंथ है तो दूसरा व्यू कंपलसरी पैरेलल होता है। इधर ट्रू लेंथ है तो इधर पैरेलल, फ्रंट व्यू में ट्रू लेंथ, टॉप व्यू पैरेलल, टॉप व्यू में ट्रू लेंथ, फ्रंट व्यू पैरेलल। तो फ्रंट व्यू पैरेलल बनाएंगे, ए डैश से पैरेलल बनाएंगे ऐसे। अब फिर उसका प्रोजेक्टर बनाइए, राइट। तो इसका नाम होगा अभी B2 का फ्रंट व्यू, B2
डैश, इसको कहते हैं फ्रंट व्यू में रेड्यूस्ड लेंथ यानी कि फ्रंट व्यू लेंथ। ओके, अब हम एक स्टेप दूर है सिर्फ फाइनल स्टेप से, ठीक है। तो उसके लिए पहले क्या करना है, आपको ड्रॉ करना है लोकस। कहां से, कोई भी इंक्लाइन लाइन दिखी सॉल्यूशन में आपको आगे के भी प्रॉब्लम्स में, तो उस इंक्लाइन लाइन के एंड पॉइंट से हमेशा लोकस बना के रखिए। लोकस का मतलब ऐसी लाइन चेन की जैसी, लॉन्ग डैश स्मॉल डैश, ठीक है। तो यहां पे भी एक लोकस बनाइए। ठीक है, उसको आप लिख सकते हो लोकस ऑफ बी डैश, लोकस ऑफ बी, ठीक है। इस लाइन को कहेंगे लोकस ऑफ बी डैश, मैं आपको शॉर्ट में ऐसे देता हूं करके, लोकस ऑफ बी, लोकस ऑफ बी डैश। ओके, अभी जस्ट रोटेट करना है इस लाइन को, जस्ट रोटेट करना है, ठीक है। कैसे रोटेट करना है, ये जो फ्रंट व्यू लेंथ है फ्रंट व्यू के लोकस तक, टॉप व्यू लेंथ को टॉप व्यू के लोकस तक, राइट। तो मैं आपको थोड़ा एक टेक्निक बताऊं, आप कंपास से रोटेट करो, ठीक है, हम ऐसे ही रोटेट करेंगे, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे रखो कंपास और ऐसे रोटेट करो, ठीक है। तो ये इधर जाएगा, तो इसका नाम क्या होगा, फाइनल बी डैश, इसमें कोई अभी सफिक्स नहीं आएगा, इसको कहते हैं बी डैश। अब इसको डार्क कर दो, ए डैश टू बी डैश ज्वाइन करना है, ठीक है, एंड दिस एंगल इज अल्फा। अब वैसे ही इधर टॉप व्यू को टॉप व्यू के लोकस तक रोटेट करो, इधर डैश था ना, डैश के लोकस तक गए, इधर बी है तो बी के लोकस तक जाना है, फिर उसको रोटेट करो। कैसे रोटेट करेंगे, देखो ऐसे, कंपास यहां रखो, टॉप व्यू लेंथ को टॉप व्यू के रोटेट लोकस तक, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं ऐसे रोटेट करके देता हूं, बहुत फेंट, ये सिर्फ आपके लिए है, दिखना नहीं चाहिए किसी को ज्यादा, ठीक है। तो अब ये फाइनल पोजीशन हम लेते हैं, दिस इज बी, ज्वाइन करो ए के साथ, ठीक है। अब ये एंगल क्या हो गया, बीटा, ये होगा अपना फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है। मैं आपको इस आर्क को थोड़ा सा ड्रॉ करके देता हूं अभी, इस तरह से, ठीक है। अभी है हमारी फाइनल पोजीशन। अभी हमारा प्रॉब्लम सही है या गलत, कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो अगर आपका प्रॉब्लम हो गया, तो जैसे देखो यहाँ ए और ए डैश एक प्रोजेक्टर पे, वैसे ही फाइनल सॉल्यूशन में, फाइनल स्टेप में बी और बी डैश एक प्रोजेक्टर पे आने चाहिए। आ गए क्या, आ गए हैं, ठीक है। इसको कहते हैं एक प्रोजेक्टर, इसको कहते हैं एक प्रोजेक्टर, इन दो लाइंस को कहते हैं एंड प्रोजेक्टर्स। क्या कहते हैं, एंड प्रोजेक्टर्स। दिस इज एंड प्रोजेक्टर, दिस इज अनदर एंड प्रोजेक्टर, और इन दोनों के बीच में का जो डिस्टेंस है, इसको कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर, जो कि एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है आने वाले प्रॉब्लम्स में, ठीक है। अब एक शॉर्ट में रिलेशन बता देता हूं, क्या क्या रिलेशन होता है परमानेंट सभी प्रॉब्लम्स में कॉमन। ए और ए डैश एक लाइन पे होते हैं, बी और बी डैश भी एक लाइन पे होते हैं, सिर्फ फाइनल प्रोजेक्शंस के। फाइनल प्रोजेक्शन का मतलब जो आपको रेड कलर के लाइन दिख रहे हैं ना, वो अल्फा बीटा की लाइंस, दीज आर फाइनल प्रोजेक्टर, नो एजम्पशन, फाइनल। ओके, देन बहुत इंपॉर्टेंट, इधर अगर ट्रू लेंथ है तो ये ट्रू लेंथ अपोजिट व्यू में पैरेलल के साथ मैच होगी। ये देखो, इसके प्रोजेक्टर इसके साथ मैच हो गए, और इस ट्रू लेंथ के प्रोजेक्टर इधर इस प्रोजेक्ट पैरेलल के साथ मैच हो गए। ट्रू लेंथ पैरेलल और इधर ट्रू लेंथ पैरेलल, ठीक है। और एक रिलेशन, ट्रू लेंथ का एंड पॉइंट रेडियस लेंथ का एंड पॉइंट एक ही लोकस पे होता है, ट्रू लेंथ का एंड पॉइंट रेडियस लेंथ का एंड पॉइंट एक ही लोकस पे होता है। तो इस तरह से हमें सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। ये हमने सॉल्व किया है सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, क्या होगा फर्क, डेटा सेम रह सकता है, सिर्फ आपको क्वाड्रेंट बदल के देंगे। इसी प्रॉब्लम में अगर बोला होता कि बी पॉइंट इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये बी डैश नीचे आता और बी ऊपर जाता, ऐसे क्रॉस होते थे व्यूज, तो सॉल्यूशन देख के स्टूडेंट्स डर जाते हैं। तो डरने की कोई बात नहीं है, जो हमने बेसिक कंसेप्ट बताया उसी को बार बार यूज करना है, राइट। सो थैंक यू वंस अगेन, बेस्ट ऑफ लक।